Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Plants Living and Surviving. Learning objectives, terrestrial plants and aquatic plants. Plants and animals found in the desert of Rajasthan are very different from those found in the hills of Kashmir or Ooty. Why do you think it is so? Why cannot coconut trees grow in hilly areas? Look at the given picture of the floating plant. Notice the green color on top of the leaves and the reddish underside of the overturned leaf. देखिए प्लांट्स और एनिमल्स जो आपको राजस्थान के डेजर्ट में मिलते हैं वो डिफरेंट होते हैं जो आपको कश्मीर या ऊटी जो कि आपकी हिली एरियाज है. तो ऐसा क्यों होता है? एंड कोकोनट ट्री जो है वो हिली एरियाज में क्यों नहीं ग्रो कर सकते हैं? तो इन सभी के क्वेश्चंस का हम आंसर जानते हैं इस चैप्टर में. Plants are seen all over the earth. They are found everywhere, be it on mountains, in valleys, in cold and hot places, and even in water. The place where a plant species naturally lives and grows is called its habitat. The features that allow a plant to live in a particular place are called adaptations. Thus, adaptation helps the plants to live comfortably and safely in their habitat. प्लांट्स आपको अर्थ में हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह, चाहे आप माउंटेन्स की बात करें, चाहे आप कोल्ड या हॉट प्लेसेस की बात करें, वैलीज़ की बात करें, तो वो प्लेस जहाँ पे प्लांट स्पीशीज़ नेचुरली रहती हैं, ग्रो करती हैं, उसे कहते हैं उनका हैबिटेट. एंड वो फीचर, प्लांट्स के वो फीचर जो उन्हें हेल्प करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस में सर्वाइव करने में, उन्हें कहा जाता है अडैप्टेशन. According to their habitat, plants are classified into two groups, terrestrial plants and aquatic plants. So basically आपके दो plants हैं, terrestrial plants जो आपके लैंड पे होते हैं, aquatic plants जो आपके पानी में होते हैं. तो देखिए दो कैटेगरीज हैं आपकी, terrestrial and aquatic. अब terrestrial plants में आते हैं plants on mountains, plants in plains, plants in coastal areas, plants in marshes and plants in desert. दूसरी तरफ आपके जो aquatic plants में आपके थ्री कैटेगरीज हैं, floating plants, fixed plants and अंडरवाटर प्लांट्स. तो चलिए इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. Plants growing on land are called terrestrial plants. The land has different features like mountains, forests, plains and deserts. The natural conditions in which terrestrial plants grow differ from place to place. Plants growing in different conditions have different body features to live comfortably in their natural condition. देखिए जो प्लांट्स आपके लैंड पे होते हैं कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. अब लैंड में भी ना बड़े सारे फीचर्स हैं. आपके माउंटेन्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, प्लेन्स भी हैं एंड डेजर्ट्स भी हैं. तो जो नेचुरल कंडीशन जिसमें डेजर्ट आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो करते हैं वो प्लेस टू प्लेस आपके डिफरेंट करते हैं. यानी कि जो प्लांट्स आपके डेजर्ट में ग्रो करेंगे वो डिफरेंट होंगे माउंटेन से, राइट. द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. Number 1, plants on mountains. Trees growing on mountains and hilly areas do not have much space to spread out. So they grow tall and thin to trap sunlight. These trees are cone-shaped, having sloping branches so that snow can easily slide off their branches. Instead of flowers, they have cones with seeds inside them and are therefore called conifers. The conifers have needle-like leaves and have a waxy coating to prevent any damage from cold and snow. Pine, fir, cedar, deodar and spruce are some common examples of conifers. Besides trees, small flowerless plants like ferns, mosses and lichens also grow on mountains. Tea plants also grow on the hill slopes which have heavy rainfall. अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को ग्रुप किया गया 5 कैटेगरीज में. तो सबसे पहले माउंटेन्स में. जो प्लांट्स आपके माउंटेन्स या हिली एरियाज में ग्रो करते हैं उनमें ज़्यादा स्पेस तो होता नहीं है स्प्रेड आउट करने के लिए. तो वो क्या होते हैं, वो काफ़ी लंबे होते हैं आपके एंड जनरली क्या होते हैं कि कोन शेप में होते हैं. ये देखिए आप इनकी शेप अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज कॉनिकल शेप. अब इनमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स इनमें कोन्स होते हैं, उनके अंदर सीड्स होते हैं. तो इन्हें बोला जाता है, ये देखिए दिस इज द कोन, राइट. तो इन्हें बोला जाता है कॉनिफर्स. कॉनिफर्स की लीव्स होती है निडल जैसी और जनरली आपकी क्या होती है, निडल जैसी होती है तो और इस शेप में होती है. तो जितना भी स्नो होता है वो स्लाइड ऑफ हो जाता है, राइट. जैसे कि आपके सारे एग्जांपल्स हैं कॉनिफर्स के. इसके अलावा ट्रीज़ के अलावा अगर हम फ्लावरलेस प्लांट्स की बात करें जो आपके माउंटेन्स में होते हैं वो हैं आपके ये सारे. ट्री की प्लांटेशन भी आपकी हिली एरियाज में होती है बट जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है. नेक्स्ट इज प्लांट्स इन प्लेन्स. ट्रीज growing in plains have more space to spread out. These are flat leaves which help water vapor to evaporate and keep the tree cold when the climate is hot. Flat leaves also help to trap a lot of sunlight. Some trees shed their leaves in winter to protect themselves against the cold. As the spring approaches, new leaves start growing. Such trees are called deciduous trees.
मैंगो, पीपल, बेनियन, गुलमोहर एंड नीम आर सच ट्रीज। अब प्लेस की बात करें तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो ट्रीज़ होते हैं उनकी जो लीव्स या ब्रांचेस होते हैं स्प्रेड आउट हो जाती हैं, तो इनकी फ्लैट लीव्स होती हैं जिससे जो वाटर वेपर है वो इवेपोरेट होता है एंड ट्री को कूल रखता है जब क्लाइमेट आपका हॉट होता है। इसके अलावा अगर फ्लैट लीव्स हैं लाइक दिस तो क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को ट्रैप करेंगे। तो कुछ इसमें जो प्लांट्स होते हैं अपनी लीव्स को शेड करते हैं अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए, और जैसे ही स्प्रिंग आता है तो न्यू लीव्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ट्रीज को बोला जाता है डेसिडियस ट्रीज एंड दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सच ट्रीज। In some areas of the plains, the climate is hot and wet. The trees bear leaves throughout the year. They do not shed their leaves in winter, but each leaf sheds independently of the others. Such trees are called evergreen trees. Palm, coconut, and rubber grow in such climate. Coffee, rice, sugarcane, and pepper are some other plants that grow in such places. अब कुछ एरियाज है प्लेन्स की जहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी हॉट एंड वेट होता है, यानी बारिश भी बहुत ज़्यादा आती है बट हॉट भी होता है। तो वहाँ पे जो ट्रीज़ होती हैं उनकी जो लीव्स होती है वो थ्रू आउट द ईयर रहती है, वो अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं विंटर में, बट हर लीव जो है वो शेड करती है इंडिपेंडेंटली, वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होती है। तो ऐसे ट्रीज को बोला जाता है एवरग्रीन, यानी पूरे साल आपको ये ग्रीन नजर आएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके ये। इसके अलावा कॉफ़ी, राइस, शुगर केन, पेपर, ये भी ऐसी प्लांट्स हैं जो आपके ऐसे प्लेसेस में ग्रो करते हैं। इन सम एरियाज ऑफ प्लेस इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर. The plants in such places turn into dense green forest. Such forests are called rain forest. कुछ एरियाज होते हैं प्लेन्स की जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो ऑब्वियसली प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा होगा, तो एकदम डेंस ग्रीन फॉरेस्ट हो जाता है। तो ऐसी फॉरेस्ट को कहते हैं रेन फॉरेस्ट। In some areas of plains there is little rainfall, so there are not many trees or bushes. Large area of land is covered with small trees, grasses and wildflowers. These type of areas are called grassland. अब कुछ ऐसे एरियाज हैं आपके प्लेन्स में जहाँ पे बहुत थोड़ी सी बारिश होती है और आपके यहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ या बुशेस नहीं होती हैं, तो जो लार्ज एरिया होता है लैंड का वो कवर्ड होता है छोटे छोटे ट्रीज़ के साथ, ग्रासेस के साथ या फिर वाइल्ड फ्लावर्स के साथ। तो ऐसे टाइप ऑफ एरियाज को कहते हैं ग्रासलैंड्स, और इन सभी के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप हायर क्लासेस में चले जाएंगे। Plants in coastal regions. Plants growing in coastal regions have deep, long roots and a strong, flexible stem to tolerate strong winds. Their leaves are thick and formed of many long stripes to tolerate strong winds. जो कोस्टल एरियाज में आपके प्लांट्स होते हैं इनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं, डीप रूट्स होती हैं एंड काफ़ी फ्लेक्सिबल स्टेम होती हैं जो कि स्ट्रॉन्ग विंड्स को टॉलरेट कर सकें. Plants in marshes. In marshy areas, the soil is sticky and clay. Clay holds a lot of water and very little air. The trees that grow here are called mangroves. Mangrove trees have breathing roots which grow above the water. These roots also have special parts for breathing. Examples of such plants are Avicennia, black mangrove and Rhizophora, red mangrove. मार्शी एरियाज में क्या होता है कि जो सॉइल होती है काफ़ी स्टिकी होती है एंड क्ले होती है. ऑब्वियसली क्ले है तो स्टिकी होगी, तो क्ले क्या करती है, लॉट ऑफ वाटर होल्ड करती है, उसमें अमाउंट ऑफ एयर बहुत कम होता है. तो जो ट्रीज होते हैं वो क्या, जो यहाँ पे ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं मैंग्रोव्स. इनकी ब्रीदिंग रूट्स होती हैं क्योंकि एयर आपके सॉइल में एयर स्पेस काफ़ी कम होता है, तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो बाहर आ जाती हैं आपका ऑक्सीजन लेने के लिए, एयर लेने के लिए. तो इनको बोला जाता है, इनकी ये एरियल भी बोला जाता है ना, एरियल रूट्स. तो एग्जांपल्स ऐसे प्लांट्स के हैं आपके, दीज आर द एग्जांपल्स. Plants in desert. In desert, days are extremely hot and nights are very cool. There is hardly any rainfall. Plants growing in these places are called xerophytes. To survive in such harsh climate, desert plants have adopted the following features. अब desert तो आपको पता ही है कि वहाँ पे बहुत थोड़ा सा rainfall होता है, temperature बहुत ज़्यादा high होता है. तो जो plants आपके desert में grow करते हैं उन्हें बोलते हैं xerophytes. तो कुछ features होते हैं इन plants के जिससे कि वो harsh climate में survive कर पाते हैं. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले the stem is green, thick and fleshy, which makes food for the plant and it also stores water in its thick stem. देखिए आपको पता है कि लीव जो है आपकी किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है बिकॉज वो खाना बनाती है. बट आपके जो जेरोफाइट्स होते हैं यानी जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम होती है ग्रीन, थिक और फ्लैशी, तो वो प्लांट के लिए खाना बनाते हैं. Leaves are modified into spines to reduce water loss. To protect their flowers from heat, most cactus plants bloom at night. लीव्स जो हैं वो टर्न हो जाती हैं आपकी स्पाइंस में, कांटों में, जिससे कि वाटर लॉस रिड्यूस हो सके. और फ्लावर्स को हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादातर जो कैक्टस प्लांट है वो रात को ही ब्लूम करते हैं. द रूट्स आर स्प्रेड आउट वाइड टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डीप अंडर द सॉइल. उनकी जो रूट्स होती हैं बहुत ही वाइड स्प्रेड आउट होती हैं जिससे कि वाटर को एब्जॉर्ब कर सके सॉइल के अंदर से.
So here are the examples. Cactus, date palm, babool, kikar and prickly pears are some common desert plants. Fact file. Plants growing in desert produce seeds that can stay alive for many years. Some can remain alive for as long as 10 years. That too by remaining buried in hot desert sand. आपको पता है जो डेजर्ट प्लांट में जो प्लांट्स होते हैं आपके वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कई सालों तक रहते हैं, और कुछ तो आपके अगर वो हॉट डेजर्ट सैंड के अंदर भी बरीड हो गए ना तो 10 साल तक वो आपके जिंदा रहते हैं. Non-green plants. Some plants like mushrooms, toadstools and molds are non-green because they do not have chlorophyll. Such plants cannot make their own food and usually absorb food from other plants or dead materials. They are called parasitic plants. कुछ प्लांट्स आपके होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं बिकॉज उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, एंड आपको पता है क्लोरोफिल की वजह से ही जो प्लांट्स का या लीव्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है. तो ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. तो ऐसे प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरे प्लांट से या डेड मटीरियल से. तो ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है पैरासिटिक प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल दीज आर पैरासिटिक प्लांट्स. Insectivorous plants. It is interesting to know that there are some plants which eat insects. The plants which eat insects are called insectivorous plants. These plants grow in soil which is poor in minerals. Pitcher plant, sundew and Venus flytrap are insectivorous plants. The hollow leaves of pitcher plant are filled with nectar. Insect comes to feed on this nectar. As it sits on the edge of the picture, the lid closes and the insect gets trapped inside. A Venus flytrap has two halves of leaves. When an insect sits inside, the two halves close and the insect is trapped. अच्छा, आपको मालूम है कि कुछ प्लांट्स इंसेक्ट भी खाते हैं? आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा पता नहीं होगा. तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट भी खाते हैं, बट अभी रीज़न आता है कि क्यों खाते हैं. एक्चुअली ये प्लांट जिस सॉइल में ग्रो करते हैं वो थोड़ी सी मिनरल डेफिशिएंट होती है, राइट. तो फिर अपनी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए प्लांट्स जो है आपके इंसेक्ट को खाते हैं. फॉर एग्जांपल आपके हैं पिक्चर प्लांट, सनड्यू एंड वीनस फ्लाईट्रैप. आपके एग्जांपल है. तो पिक्चर प्लांट एक मटके की तरह होता है, जैसे इसके नाम से ही पता है. इसकी हॉलो लीव्स में होती हैं जिसमें नेक्टर फिल्ड होता है. तो इंसेक्ट क्या होते हैं, वो नेक्टर को सक करने के लिए आते हैं, और जैसे ही वो पिक्चर के एज पे बैठते हैं तो एकदम से उसका ढक्कन क्लोज हो जाता है, लिड क्लोज हो जाता है, एंड इंसेक्ट उसी के अंदर ट्रैप हो जाता है. इसी तरह से वीनस फ्लाई ट्रैप में देखिए इस तरह से, देखिए इंसेक्ट ऐसे बैठता है, उसके जो दोनों फ्लैप्स होते हैं वो दो हाफ्स जो होते हैं वो इस तरह से क्लोज हो जाते हैं, एंड इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाता है. Aquatic plants. Plants that grow in water are called aquatic plants. There are 3 types of aquatic plants. Floating plants, fixed plants and underwater plants. आपको पहले भी बताया था कि aquatic plants यानी जो water में होते हैं उनकी 3 कैटेगरीज हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं floating plants की. Some plants float freely on the surface of water. They have spongy bodies which help them to float. Their roots are not fixed in the waterbed and are poorly developed. Waxy leaves of these plants prevent stomata from damage so that they can easily breathe through stomata which are on the upper surface of the leaves. Duckweed and water hyacinth are floating aquatic plants. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर के सरफेस पे फ्रीली फ्लोट करते हैं. इनकी स्पॉन्जी बॉडीज होती हैं जिनको फ्लोट करने में हेल्प करती हैं. अब इनकी जो रूट्स होती है वो फिक्स नहीं होती है वाटर बेड पे, और ये पोरली डेवलप्ड होते हैं. इनकी लीव्स वैक्सी होती है जो कि स्टोमेटा को प्रिवेंट करती है डैमेज होने से. सो ये इजीली ब्रीथ करते हैं स्टोमेटा से, जो कि लीव्स के अपर साइड में होता है. एंड इसके एग्जांपल्स आप देखिए, डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ. Next category is fixed plants. The roots of some plants are fixed to the bottom of the water bed. These plants have long hollow stems which help the broad leaves and flowers to float. The stem of fixed plant is very flexible. Their leaves have stomata on the upper surface so that they can easily breathe. Water lily and lotus are fixed aquatic plants. अब कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, जैसे कि आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं, फिक्स्ड प्लांट्स, राइट. तो इनकी जो रूट्स होंगी वो फिक्स्ड होंगी वाटर बेड के बॉटम पे. इन प्लांट्स की हॉलो और लंबी सी स्टेम होती है जो कि, और उनकी जो ब्रॉड लीव्स या फ्लावर्स होते हैं उनको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं. तो जो स्टेम होती है फिक्स प्लांट की वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है. तो इनकी लीव्स में स्टोमेटा होता है अपर सरफेस में ताकि ईजिली ब्रीथ कर सकें. इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके वाटर लिली एंड लोटस. Underwater plants. Some plants grow totally underwater. They are called submerged plants. They have narrow and thin leaves with no stomata. They breathe through their body parts. They have very delicate and flexible roots. These plants use the carbon dioxide breathed out by aquatic animals. That is why we put them in aquariums. Tape grass, pondweed and Vallisneria are such plants. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो टोटली अंडर वाटर होते हैं, उन्हें कहते हैं सबमर्ज्ड, यानी पानी में ये सबमर्ज्ड रहते हैं.
इनकी काफ़ी नैरो एंड थिन लिव्स होती है जिनमें स्टोमेटा होता ही नहीं है, तो ये ब्रीथ कैसे करते हैं अपने बॉडी पार्ट से, तो इनकी जो शूट्स होती हैं काफ़ी डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल होती हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीद आउट करते हैं, इसीलिए हम इन्हें एक्वेरियम्स में रखते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं आपके टेप ग्रास, स्पॉनबीट एंड वेलस्टेरिया। Summary: plants grow almost everywhere in the world. Terrestrial plants grow on land. Plants of plains shed their leaves in winter to protect themselves against cold. Most of desert plants modify their leaves into spines to avoid water loss. Non-green plants absorb their food from other plants. Pitcher plant, sundew, and Venus flytrap are insectivorous plants. Aquatic plants grow in water. Floating plants float freely on the surface of water. Underwater plants are also called submerged plants. ये प्लांट्स आपके हर जगह पाए जाते हैं कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। टेरेस्ट्रियल को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जबकि आपके एक्वाटिक प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कुछ आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, राइट। एक्वाटिक प्लांट्स आपको पता है पानी में ग्रो करते हैं। कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो पानी के सर्फेस पे फ्लोट करते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स को सबमर्ज प्लांट्स भी कहा जाता है क्योंकि टोटली अंडर वाटर होते हैं। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।